Nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news from the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have esteemed guests in the panel discussion today. We got Avadhoot Wagh Sahab from the Bharatiya Janata Party. Wagh Sahab, welcome to the show, sir. Namaskar. Thank you very much. Namaskar, sir. Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, welcome to the show. Namaskar, Bharat Singh ji. Namaskar. Namaskar. And Sanjay Dwivedi ji from the Uddhav Bala Thackeray Sena. Welcome to the show, Sanjay Dwivedi sahab. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Pranam, Jai Sri Ram. BJP today declared the first lift of the election, the candidates for the Lok Sabha elections. 16 states, 195 candidates, 28 उसमें woman है, महिला है. BJP और at the same time राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से आज ग्वालियर पहुंचा. राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी स्पीड ब्रेकर है, पॉलिसीज उनके पॉलिसीज इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है. आगे जाके जिस प्रकार से रफ्तार बारामती में हम लोग देखें, शरद पवार जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रिपल इंजन सरकार किस प्रकार रोजगार योजना. सर, विल कम टू यू, विल स्टार्ट विद यू वाघ साहब. अवधूत वाघ साहब, यू हर्ड बीजेपी हैज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट लिस्ट. पहला लिस्ट बीजेपी का ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका लोकसभा का. 16 स्टेट्स, 195 कैंडिडेट्स, उसमें 28 वुमन कैंडिडेट्स. Prime Minister himself has declared as a candidate from Varanasi. Sir, how do you see अब की बार 400 पार, जिस प्रकार मोदी साहब का बार बार कहना ट्रिपल हैट्रिक होगा विक्ट्रीज का. वाघ साहब, how do you see that? First of all, I welcome the list published by list of the candidates published by Bharatiya Janata Party Delhi. Although this list does not include any candidate from Maharashtra, but it includes the name of various around 195 candidates from around 16 states. This is a partial list encompassing around 35 to 40% of the total Lok Sabha candidates of Bharatiya Janata Party, and I welcome it on behalf of Bharatiya Janata Party Maharashtra. This particular list represents youth, it represents farmers, it represents women, scheduled caste, scheduled tribes, minorities. It represents the overall picture and aspiration of India. These 195 candidates of Bharatiya Janata Party are going to become the part of 400 member of parliaments, what we are aiming for. And when we talk about अब की बार 400 पार, ये मोदी जी की गारंटी है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की गारंटी है. So I am 101% sure that we will fulfill the aspirations of Bharat and the promise of नरेंद्र मोदी जी. भरत सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं. भरत सिंह जी, मोदी जी डिक्लेयर किया है अब की बार 400 पार. भरत सिंह जी, भारत जोड़ो यात्रा ग्वालियर पहुंचा है, मगर मोदी जी ने पहले अपना लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया. फर्स्ट लिस्ट 195 कैंडिडेट्स का मोदी जी ने तैयारी आपका ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया. वी आर ऑलरेडी बैटल रेडी. 400 पार और ट्रिपल जो हैट्रिक होगा इस बार. भरत सिंह जी, देखिए, 400 पार कहने से नामबियार जी कोई 400 पार नहीं हो सकता है ना. अगर भाजपा कहेगी 532 पार, तो 532 पार तो देश की 140 करोड़ जनता लगाएगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना है. तो भाजपा जो है वो 400 पार कहे या 100 पार कहे, ये भाजपा की अपनी मर्जी है और वो आजाद है इसके लिए, वो कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर वो 400 पार होते नामबियार जी, तो आखिर क्यों महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में लेके जा रहे हैं. और किसको लेके जा रहे हैं? मजे की बात तो ये है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार का, आप कहते हो कोई 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, तो कोई आदर्श का भ्रष्टाचारी है, तो कोई पेपर का भ्रष्टाचारी है, तो कोई जो है पैसे का भ्रष्टाचारी है. तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेके सज्जित होके
भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब जाएगी तो देश की जनता उनसे पूछेगी ना। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और जिस नेता के ऊपर आपने आरोप लगाया, चाहे वो अशोक चौहान जी हो, चाहे वो अजित पवार जी हो, चाहे वो भावना गवली हो, चाहे वो ऐसे करीब करीब मुझे लगता है नारायण राणे हैं, प्रताप सरनाइक है, जाधव है, मुझे लगता है करीब करीब 25 से 30 नेताओं के ऊपर जिसके ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी, अवधूत वाघ जी जो बैठ के सबके ऊपर आरोप लगाते थे, आज उन्हीं को लेके और जो है पार्टी जो है अपनी चला रहे हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है और पूरे देश की जनता इसी तरह से देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा आरोप लगाती है और उन्हीं दागियों को लेके और सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता इसको समझती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। एक तरफ राहुल जी हैं, ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं, ईमानदारी से जो वादा करते हैं, जहां भी हमारी सरकारें 4 राज्यों में 3 राज्यों में आती हैं वहां पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर मोदी जी और भाजपा जहां जहां इन्होंने जो जो वादे किए उन सभी वादों से मुकर जाती है और एक मंत्री को खड़ा कर देती है, एक नेता को खड़ा कर देती है और ये कहलवा देती है यह तो एक जुमला था। तो अब जुमला बाजों को वोट देना है कि अब जो है सच्चों को वोट देना है, इंडिया को वोट देना है या इंडिया को ठगने वालों को वोट देना है, ये तो जनता तय करेगी। Wag Sahab, I'll come back to you, but first let me go to Sanjay Dwivedi ji. Sanjay Dwivedi ji from the Uddhav Bala Sahab Thackeray Sena. Dwivedi ji, आपने सुना मोदी जी ऑलरेडी लिस्ट फर्निश कर चुके हैं, फर्स्ट लिस्ट आपका फर्निश हो चुका मोदी जी का, बीजेपी का, एंड दे आर बैटल रेडी। अब की बार 400 पार, ट्रिपल हैट्रिक होगा मोदी जी का कहना है। और मोदी जी ने पूरा चार्ट आउट प्रोग्राम्स किया है, पूरे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरा मिशन है विश्व गुरु बनाने का 2047 तक उन्होंने पूरे अपना चार्ट आउट किया है, पूरे प्लान्स। इज दी एमवीए रेडी? देखिए प्रदीप जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ बोलिए। स्पष्ट रूप से, क्योंकि चुनाव होने हैं, हर पार्टी अपने करियर घोषित करेगी। देखिए ये अपना देश, जो भारत देश है, यहाँ पे युद्ध नहीं होता है। यहाँ पे 40 करोड़ जनता जो है वो चुनकर भेजती है। इससे पहले कांग्रेस सत्ता में रही, 60-65 साल रही, राज्य किया उन्होंने, और उनके राज्य में भी आप देखिएगा सुई से लेके आज रेलवे इंजन जो उससे बिजली से बन गया वो बन गया है, भावा अनुसंधान केंद्र बने, हवाई जहाज बने, तमाम चीजें ऐसी बनी। तो जहां तक अगर बात आती है कि हमने क्या किया, तो जो ये चल रहा है इस समय देश में, आप देखिए जो पेट्रोल दाम जो चल रहे हैं, आप माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें क्रूड ऑयल जो था वो कितना था, और उससे उसके एवरेज में पेट्रोल कितने दाम का था। आज क्रूड ऑयल सस्ता है, पेट्रोल के दाम कितने है, डीजल के दाम कितने। पहली बात, आप सब्जी मंडी चले जाइए, महंगाई कितनी है। एक जरा चीज है, देखिए डीजल के दाम बढ़ेंगे, किसान परेशान होंगे। अगर महंगाई सब्जी में या दाल चीनी बढ़ रही है तो उससे जो आम जनता है, जो गरीब है, देखिए उसके साथ साथ रुपए बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो बात अभी अवधूत जी ने कही बहुत स्पष्ट रूप से कि साहब विश्व गुरु बनना, आपने भी कहा विश्व गुरु बनना, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? न नौकरी है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है और तमाम ऐसी परेशानियां हैं। आज क्या दिक्कत है? आज आप चाहे किसी सरकारी संस्था की बात करें या किसी की बात करें, जब चुनाव आते हैं सरकारी संस्थाएं लग जाती हैं विपक्षियों के घर में। तो ये जो राजनीति चल रही, हमने वो भी समय देखा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तबीयत खराब थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी, उन्होंने उनका चुपचाप इलाज कराया, कोई जान भी नहीं पाया, उनके मरने के बाद लोग जाने। तो ऐसा भी समय था। और उस समय विपक्ष की क्या स्थिति होती थी कि सब इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा मीटिंग में भेजती थी। लेकिन आज पक्ष विपक्ष की क्या हालत है? तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, दो चुनाव में गठबंधन नहीं बना था। अभी जो 2 चुनाव हुए हैं 2014 में, 2019 में, विपक्ष का गठबंधन नहीं बना था, शोर होता था। 2014 में भी शोर हुआ सब गठबंधन बनेगा, 2019 में भी शोर हुआ गठबंधन बनेगा। और जिस तरह से गठबंधन बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कह रहे थे गठबंधन नहीं बन पाएगा, लेकिन आज तो 30-35 लोग इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए राजनीतिक जो पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां, चाहे आपका पश्चिम बंगाल ले लें, दिल्ली ले लें,
चाहे यूपी ले लें, बिहार ले लें, या जहां जहां भी आप देखें, अब इंडिया गठबंधन बन गया है। हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी, आप 2.5 साल इंतजार करना चाहिए था आपको। लेकिन क्या है कि चूंकि हमें सरकार बनानी है, सत्ता छीननी है, आपने क्या किया, एनसीपी पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर आपने एनसीपी को तोड़ा। हंसी की बात देखिए, आप हिंदुत्व नहीं था उद्धव जी में, इसलिए हमने तोड़ा। और जबकि मानी बाला साहब ठाकरे की क्या चीजें थी, अगर हिंदुत्व नहीं था, तुमने तोड़ दी, तो मलाई क्यों खाई तुमने, मुख्यमंत्री क्यों बने? असम देख लीजिए आप, असम में भी क्या हुआ, जिन पे आरोप लगा रहे थे वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तो हमारा कहने में इतना है, अगर आप जो गारंटी की बात करते हैं, गारंटी हमारी 5 इतनी गारंटी है, ये है, तो जनता तो देखे कम से कम। जनता को आज क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। महंगाई आपने इतनी ज्यादा कर दी। मैं कल मंडी गया था, कल घूमने गया, देखा मैंने जाके, जो दाम सबके 4 दाम हो गए, 5 गुने दाम हो गए। मैं द्विवेदी जी मैं पूछता हूं वाघ साहब से। वाघ साहब, यू हर्ड दैट, you heard them speak, you heard Indian National Congress Bharat Singh ji and you heard Sanjay Dwivedi from the Uddhav Thackeray Sena। भरत सिंह जी आपको पूछ रहे थे कि अब 400 पार है, हैट्रिक है, तो लोगों को तोड़ने की जरूरत क्या है? अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, अलग अलग जितने लोग फूट फूट के आप ले रहे हो, पार्टियां तोड़ रहे हो। सर वाघ साहब, why we see a plan for Prime Minister Modi, everything is clear, 2027 $5 trillion economy, 3 trillion, $2 trillion economy, exports से लेके 2047 तक पूरा प्लान है, बट पार्टी क्यों तोड़ रहे हो सर? वाघ साहब, why you are breaking up parties? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी पार्टी। हम लोग किसी को तोड़ नहीं रहे, हम लोग जोड़ रहे हैं। और मैं पूछता हूं कि जो अलग अलग पार्टी है वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल क्यों नहीं सकती? आप आपके घर में जो लोग हैं उनको संभाल नहीं पाते, आपके घर के लोग आपका घर छोड़कर चले जा रहे हैं, और यदि पड़ोसियों ने उनको सहारा दिया तो आप बोलते हैं भैया आप सहारा क्यों देते? आप आपके बच्चों को खाना नहीं देते। अरे भैया आपने बहुत बात की, आप 15 मिनट बात की, हाथ नीचे करो पहले। देवदी जी मैं आपके पास आऊंगा। 15 मिनट बात की आपने, लगातार 15 मिनट बात किया। 2 खासदार है आपके, बात 15 मिनट करते। जरा सुनिए, सुनने का जरा कष्ट करे। देखो आपके घर में इतने लोग हैं, आप आपके घर के लोगों को खाना नहीं देते, पीना नहीं देते, अन्न वस्त्र निवारा नहीं देते। यदि पड़ोसियों ने उनको सहारा दिया तो आप कहते हैं कि मेरा घर तोड़ा। घर तोड़ने की बात कौन कर रहा है? हम तो जो लोग आना चाहते हैं, हमारे सिद्धांतों के ऊपर विश्वास रखकर जो आना चाहते हैं, उनको हम लोग हमारे पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा पक्ष बढ़ाना। यदि किसी भी पार्टी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल काम करने के बाद यदि किसी को पश्चाताप हो जाता है और उसे लगता है कि जिस पार्टी की उसने सेवा की, उस पार्टी अभी कुछ फायदे की नहीं है, उसके जो धोरण है, उसके जो उद्देश्य है वो समाप्त हो गए, उसके लीडरशिप को कोई वैल्यू नहीं है, उसकी लीडरशिप मूर्खता से भरी हुई है, ऐसा जब उसे लगता है, तो यदि वो हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे विश्वगुरु, हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों के ऊपर विश्वास रखकर, भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर विश्वास रखकर हमारे पार्टी में आता है, तो आपको खराब लगने की आवश्यकता नहीं है। आपने आपका घर ठीक करने की जरूरत है। हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आपके घर में जो है उनको अच्छा, आप उनको अच्छी तालीम दे दो, उनको अच्छा, उनका सम्मान करो। कोई दूसरे के घर में जाएगा क्यों? तो इसके लिए मैं कहता हूं कि अभी 85 डेज है। लास्ट टाइम 2014 में मुझे याद है 16 मई को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। एग्जैक्टली यदि वैसा ही हुआ तो 85 डेज है। हमारी पहली 195 की लिस्ट भी चली आई है। आज तक इंडी गठबंधन के सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। जो हो रहा है वो दो पार्टी में हो रहा है, जैसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हो रहा है। वहां आरजेडी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी कहाँ है? अब दिल्ली में और पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, वो आप और कांग्रेस में है, वहां डीएमके कहाँ है? तो इसका मतलब है ये इंडिया आघाड़ी वगैरह सब झूठ है। कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग प्रादेशिक पार्टी के साथ गठबंधन करती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक प्रादेशिक पार्टी बोलकर अभी आ रही है। उसका नेशनल इमेज खत्म हो गया है। इट इज इक्विवेलेंट टू अ रीजनल पार्टी ऑल ओवर इंडिया। वाघ साहब या भरत सिंह जी, आप सुने,
I'll come back to द्विवेदी जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले भरत सिंह जी बात करेंगे। भरत सिंह जी, आप सुने जो वाघ साहब ने बोले कि आपका कसूर है, आप बेवफा निकले। अशोक चौहान जी गए तो बोले कि पार्टी नेतृत्व के पास कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं है मोदी जी को टेक ऑन करने। मिलिंद देवरा जी बोले मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जाति जनगणना पे बात कर रहे हैं। तो कैसे ये एक एक कारण बोल के छोड़ दिए सब लोगों ने? भरत सिंह जी। भाजपाइयों ने अपना ईमान धर्म सब है ताक पे रख दिया है। ताक समझते होंगे उत्तर भारत में ताक को क्या कहा जाता है। इन्होंने अपने सारे चीजों को ताक पे रख, कह रहे कि हमने घर तोड़ा नहीं, घर जोड़ा है। अवधूत जी, संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री नाम लेते हैं आदर्श घोटाला। ये तोड़ रहे थे कि जोड़ रहे थे? देश के प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। पवार, ये क्या था? ये तोड़ रहे थे कि जोड़ रहे थे? नामबियार जी, अभी भाजपा ने एक नया सिस्टम चालू किया है तोड़ने और जोड़ने का। अब डायरेक्ट ये जो है किसी भी पार्टी के नेता को तोड़ना होता है तो उसे अपने पास नहीं बुलाते, अपने कार्यकर्ता या पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाते। उनका एक नई ऑफिस खोल के दे दिया है दिल्ली में, मुंबई में, पूरे देश के हर राज्यों में ईडी कार्यालय। अब वहां पे ये कहते हैं कि पहले आपको अगर आना है पार्टी में तो आपको ईडी कार्यालय जाना पड़ेगा। वो हमारी सारी सिस्टम को बता देंगे कि हमारे यहाँ प्रवेश करने का तरीका क्या है। तो भागे भागे नेता जो जाते हैं पहले ईडी कार्यालय जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब ने हमको कहा था और साहब ने कहा कि कैसे हम जो है भाजपा में प्रवेश करें। तो वो कहते हैं कि आप कितना बड़ा घोटालेबाज हैं, इस पे आपको जो है प्रवेश मिलेगा। आप जितने बड़े घोटालेबाज होगे उतना बड़ा आपको यहाँ पद मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो हमारे आका हैं दिल्ली में बैठे हैं वो कहते हैं कि पहले आप वहां पे अपने जाके नाम लिखवाइए। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पे नाम लिखवाता है ना, उसी तरह से ईडी कार्यालय में नाम लिखवाइए। फिर ईडी एक दो छापे मारेगी और छापे मारने के बाद में आपको ये कहेगी कि भैया आपको इतने बड़े घोटाले में फंसे हैं इसलिए आपको राज्यसभा भेज रहे हैं। अगर उससे बड़े घोटाले में फंसे हैं तो आपको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अगर उससे बड़े घोटाले में फंसे हैं तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे घोटालेबाजों को लेके ये पार्टी तैयार हो रही है भाजपा। और नसीहत क्या देती है? इंडी कहती, इंडिया को इंडी। अब जिस व्यक्ति को ये शर्माता हो इंडिया कहने में, अब वो इंडिया से इंडी पे आ गया है। अच्छा हुआ वेस्ट इंडीज नहीं कहा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद में ये वेस्ट इंडीज कहेंगे और कुछ दिनों के बाद में इस देश में ऐसी नौबत आएगी कि भाजपा के सारे नेताओं को इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि जो शुरुआत इन्होंने खेल का किया है उस खेल को तो इंडिया ही खत्म करेगी ना। तो वाघ जी आप घबराइए मत। ईडी और सीबीआई का जो आप खेल खेल रहे हैं ना, ये पूरा देश देख रहा है और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। आप परिवार तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, ये कभी भी कोई सिद्धांत नहीं रहा। ये ना महाराष्ट्र का रहा ना पूरे देश का रहा। मगर आप सबके घरों में जाके भाई से भाई को लड़ाना, बाप से बेटे को लड़ाना, पार्टी से पार्टी को लड़ाना, ये जो इतिहास आपने शुरू किया है ना, इस इतिहास का खामियाज भाजपा को खुद भोगना पड़ेगा। और नामबियार जी एक चीज और मैं कह के आप अपनी बात खत्म करूंगा कि जितने पार्टी से नेता गए ना वो सारे जो है वो बाहर से गए हैं, दूसरी पार्टियों से गए हैं। कभी ये एकजुट मिलके कहते हैं ना कि यहाँ मुंबई की भाषा में यूनियन, कभी ये एक यूनियन बना लिए ना ये सारे नेता मिलके, कहे कि यार ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की तानाशाही तो बहुत हो गई, अब चलिए हम लोग इनको छोड़ते हैं। पता चला कि 2-4 नेताओं के बाद इनके नेता ही नहीं रह गए। इनके एक भंडारी साहब हैं राज्यसभा में कह रहे हैं मैं पिछले 35 सालों से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा। अब देखिए अचरज की बात, कांग्रेस के 5 लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है मगर इनके पास महाराष्ट्र में कोई नेता ही नहीं बचता कि उसको राज्यसभा भेजे। तो इस पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है। विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को डरा के धमका के ईडी के जोर पे और अपनी पार्टी में लेते हैं और अवधूत जी कहते हैं कि नहीं हमारी पार्टी तो बहुत साफ है, सुथरी है, स्वच्छ है और साथ में पारदर्शी भी है। ये कांच लगा देंगे तो इस कांच से इस तरफ से उस तरफ दिखती है। ये देख रहा है सब देश, जनता देख रहा है। अवधूत जी जरा भी घबराइए। अवधूत जी, I'll come back to you, but first let me talk to द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना था राम मंदिर। राम मंदिर बोले
राम मंदिर और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। द्विवेदी जी, और बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मैं अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता हूं तो दोनों काम सिद्ध करके रखूंगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहां से कहां पहुंच गए, जो बीजेपी का बार बार आरोप अब पे लगता है? देखिए प्रदीप जी, मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगा पहले आपको। पहले तो मैं आपके भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यस यस कि साहब बगल घर वाले जो है अपने आप मेरे पास आ रहे हैं। आप महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड माफिया का नाम सुना है आपने? बोलिए। अंडरवर्ल्ड माफिया, अंडरवर्ल्ड जो माफिया होते हैं या जो माफियाज होते हैं उनका काम क्या है? उन्होंने जमीन देखी, एक मकान देखा, उस पर कब्जा कर लिया। वो निकलने नहीं दे रहे घर वालों को, कभी ये रजिस्ट्री करो चल के। अब उसकी मजबूरी है, अगर रजिस्ट्री नहीं करता तो मरता है। वैसे आज इस देश में हो गया है। अब इन्होंने हाथ धर दिया, चाहे वो ईडी रखे चाहे आईटी रखे, जिस चीज का मेरे उस पर हाथ रख दिया। अब अगर वो नहीं जाता है तो संजय अनुपम तरह जेल जाएगा, संजय सिंह की तरह जेल जाएगा, या और नेताओं की तरह जेल जाएगा, और जिन्होंने ज्वाइन कर ली वो मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बात तो ये हो गई। अभी आपने एक बात कही कि बाला साहब ठाकरे का इच्छा थी कि राम मंदिर बने। बिल्कुल सही बात है। 30-35 साल हम लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, बराबर करते रहे, बन गया, खुशी है। लेकिन कैसे बना है? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने बनवा दिया, तो वैसे तो कांग्रेस की पीढ़ी में ताला ही खुल गया, ताला खुला था तो कांग्रेस चिल्लाए कि साहब मैंने ताला खुलवा दिया। अरे ताला खुलना इससे बड़ा वो था। आज मंदिर बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बन रहा है। उन्होंने आदेश दिया। हम तो कहते बाला साहब ठाकरे अगर होते, जो बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री होते तो अध्यादेश लाते और आपका राम मंदिर बनवा देते। लेकिन चूंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, जितना मैटर चलता रहे, जितना आगे बढ़ता रहे, हम सब राम भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम भक्ति को कहीं वो नहीं करा लिया है, अपने नाम से लिखवा नहीं लिया है, या हिंदुत्व को लिखवा नहीं लिया है। हम सब हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, और राम मंदिर बनने के हम लोग बनना है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। तो आज जो बना है राम मंदिर, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, और उन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी बनानी थी केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार कांग्रेस को, कांग्रेस कमेटी बनाती, केंद्र सरकार शिवसेना को दी तो शिवसेना से बनाती वहां कमेटी। तो कमेटी इन्होंने बना दी, उसका काम अपना मंदिर बनवाने का है। जय श्री राम मंदिर बन रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने उसमें क्या, कौन से जो चिल्ला कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर हमने बनवा दिया, राम मंदिर हमने बनवा दिया, ये सब गलत है। जो बाला साहब की अगर बात करते हैं, हम लोग तो बराबर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। मैंने राज्यपाल के माध्यम से मोदी जी को भेजा लेटर, उन्होंने लिख के, उन्होंने साइन करके हमारे पास लेटर रखा हुआ है कि हाँ इस पर विचार करेंगे। कब तक विचार करेंगे भारत रत्न पे? अगर मोदी जी या एकनाथ शिंदे ये कह रहे साहब बाला साहब ठाकरे को हम मानते हैं और हम उनके उस पर चलना है, उन्होंने कभी कहा क्या? मैं तो शिवसेना 35 साल से हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ के चले जाओ, पार्टी में दगाबाजी करो, पार्टी से गद्दारी करो? किसने कहा? बाला साहब ठाकरे ने कहा। अगर आप शिवसैनिक हैं तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आप पार्टी से गद्दारी करें। उनका तो कहना मतलब लात मारे भगा दो, गद्दार हो, लात मारो तो भगा दिए। देखिए आज विधायक से सरकारें नहीं चलती हैं, विधायक से पार्टियां नहीं चलती हैं। ये चुनाव आयोग जो है, मैं कहूंगा जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे को दिया है, या एनसीपी अजीत पवार जी को एनसीपी का नाम दिया है, ये गलत है। चुनाव आयोग काम था सब सिंबल बांटने का, चुनाव कार्य सिंबल बांटने का। उनका काम भाई, हम जो पार्टी रजिस्टर जब कराते हैं, इसके बाद हम चुनाव लड़ने जाते हैं। जब हमारा 4 या 5% वोट आता है तब हम रजिस्टर्ड होते हैं चुनाव आयोग में। तो हमारा संबल जो होता है, जी मैं समझ गया आप बोल रहे हैं। अवधूत साहब भी समझ गए। अवधूत जी हाँ, क्या बोलिए 1 मिनट में बोलिए द्विवेदी जी। क्या मतलब जो सिंबल जो नाम दे दिया गया एकनाथ शिंदे अजीत पवार जी को, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। और आपने उनको नाम दे दिया पार्टी का। पार्टी नाम कैसे दे सकते हैं आप? देखिए पहली बात है, हम कह रहे हैं भारत रत्न दीजिए। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि साहब हम बड़े भक्त हैं। कैसे हो जाएंगे भाई? ऐसे तो जो पार्टियां जो बन रही है सब 10-10 विधायक सबके निकल गए। तो आपका कहना है कि पार्टी तोड़ना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। वाक साहब,
बार बार जैसे इंडिया अलायंस, जो आप इंडिया अलायंस कहते हैं, राहुल गांधी जी का 4-5 चीज कहना है। लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड एंड राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्ज। अभी जैसे दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और दोनों स्पोक्सपर्सन कह रहे थे कि पार्टी तोड़ दिया, पार्टी का सिंबल ले लिया और दूसरे को हैंड ओवर कर दिया और एंटायर जुडिशियल प्रोसेस फेवर कर। हाउ डू यू सी दैट वाघ साहब? पहले तो मैं जब INDIA अलायंस को इंडिया अलायंस बोला तब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, इंडिया अलायंस बोलना नहीं चाहिए। अभी से मैं उसको 420 अलायंस कहूँगा। तो ये 420 अलायंस जो है वो अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कोई अपने भतीजे को, कोई अपने भांजे को, कोई अपने लड़के को मुख्यमंत्री पंतप्रधान बनाने के लिए, अपना अपने रोटी सेकने के लिए और अपना अपना स्वार्थ के लिए जमा हुआ है। शिवसेना जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी और जिसका सिंबल था बो एंड एरो, धनुष्य बाण, वो पार्टी और सिंबल आज कायदे से एकनाथ शिंदे के पास है। इसका मतलब साफ है कि बाला साहेब ठाकरे ने जो सिद्धांत और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ाई और सिद्धांत और वैचारिक धारा के जो वैचारिक प्रमुख है उसके हकदार है वो एकनाथ शिंदे है। हो सकता है उद्धव बाला साहेब ठाकरे मातोश्री 1, मातोश्री 2 और शिवसेना भवन जो बनाया गया है उसके मालिक है, लेकिन वो वैचारिक वारसा के मालिक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि मुझे बहुत आश्चर्य लग गया कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रवक्ता, उन्होंने अपने पार्टी के बारे में बात कम और कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात की। बहुत अच्छी बात है, जब हम किसी को शरण जाते हैं और 10 जनपद के तलवे चाटते हैं तो हमें कांग्रेस की तरह और कांग्रेस की तरह अपने को भी अपनी धूम हिलानी पड़ेगी। आप बहुत जल्दी सीख गए। मैं आपके पास आता हूँ, पूरे सुन लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जब आप मैं आपके पास आता हूँ, ना कभी झुकी है ना कभी नीचे उसने देखा है। 1952 से हमारे जाहिरनामा में जो था 370 आर्टिकल 370 हटाने की बात थी, ट्रिपल तलाक की बात थी और 1990 से राम मंदिर की बात थी। जब हम सत्ता पे आए हम लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। इसके लिए 2014 में 283, 2019 में 303 और अभी 400 पार होने वाली है। आपको जितना बात करना है आप टीवी में बात करते रहिए, दूरदर्शन में बात करते रहिए। मैं बता दूं, घमंड नहीं करना चाहिए। जो ये घमंड आ गया ना, जो कुछ कहेंगे, घमंड जो आ गया है ना, घमंड नहीं आना चाहिए कभी। मैं आपके पास आता हूं। नहीं खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी और आपकी डिपॉजिट भी नहीं रहेगी। लास्ट 2 पार्लियामेंट आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का भी सम्मान नहीं मिला है। आप इतने गिर चुके हैं और नीचे जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये टाइम वायनाड में राहुल गांधी बहुत बड़े लीड से हारेंगे। राहुल गांधी इस समय लोकसभा पहुंच नहीं सकते। जैसे कि डर कर आपकी महारानी राज्यसभा चली गई, रायबरेली से भागकर राजस्थान के वाया राजस्थान राज्यसभा चली गई। राहुल गांधी को दूसरा कोई भी पर्याय नहीं मिलेगा, उनको राज्यसभा आना पड़ेगा। वायनाड में बहुत बड़ी मात्रा से उनका पराभव अटल है। मैं भरत सिंह जी, आप सुने जैसे आप बोलिए भरत सिंह जी बोलिए। राहुल गांधी जी का मैं जवाब देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। सिलसिलेवार तरीके से देखिए, पहले तो मैंने जो सवाल पूछा था उससे तो ये भाग खड़े हुए। मैंने पूछा था कि भाई जो दागी जितने आरोप लगाए थे आप, उन सबको लेके आप क्या साबित करना चाहते हैं। एक शब्द भी उनके मुंह से निकला नहीं, क्योंकि शर्म लाज जो है इन्होंने ताक पे रख दिया, ताक पे। और दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने तो ठप्पा लगा दिया परिवारवाद पे, वाघ जी, इसी सेशन में लोकसभा के। और उन्होंने कहा कि परिवारवाद तो ठीक है, मैं कहां परिवारवाद के खिलाफ हूं। जब उन्होंने देखा कि उनके
पार्टी में, यानी आपकी पार्टी में परिवारवाद अब हावी हो चुका है। देश के 52 ऐसे नेता आपके पार्टी में पड़े हैं जो घोर परिवारवाद से पीड़ित है, और जिसको आप दूसरे दूसरे को कहते हो परिवारवाद को, उस आपके घर में जो है परिवारवाद पड़ रहा है, उस पर आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरी बात, आपने कहा तलवे चाटने वाली बात। हाँ, तलवा चाटा किसने? ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। आज के प्रधानमंत्री बाला साहेब ठाकरे जी के घर पे जाके किस तरह से नतमस्तक होके, वो गोधरा कांड वाला आपको याद होगा सीन, वो पता होगा आपको, उस पर तलवा कौन चाट रहा था। आपको पता होगा आज के गृह मंत्री जब तड़ी पार हुए थे तो किसके शरण में आके और किसका तलवा चाट रहे थे। ऐसे आपके बहुत सारे मंत्री और मंत्री थे, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो वही बाला साहब ठाकरे के घर पे जाके नतमस्तक हुआ करते थे। मैं स्वर्गीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं। उन जैसा नेता न हुआ था न होगा, मगर वो भी जाके वहां पे नतमस्तक हुआ करते थे। तो ये बाला साहब की ताकत थी, और आप लोग उनकी जो है ना उंगली पकड़ के चलना सीखे, और आज उनके परिवार में फूट डाल के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो। ये महाराष्ट्र देख रहा है, ये देख रहा है कि शरद पवार जैसे नेता के घर में जो है आप लोग जो है डाका डालते हो और परिवार को अलग करते हो। ये देश देख रहा है, ये भी देश देख रहा है कि आप लोग जो है बारामती में कार्यक्रम करते हो, और उस कार्यक्रम में जो स्थानिक जो होता है, सांसद होता है या जनप्रतिनिधि होता है, ये प्रोटोकॉल कहता है अवधूत जी कि उसको बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, और उसका जो है हर मीडिया प्रिंट में नाम होता है। मगर शरद पवार जी से आपको इतनी खुन्नस है, इतनी जलन है कि आप जो है उनका न नाम डलवाते हो ना बुलाते हो। ये दिखाता है, ये जलन दिखाता है, और यही दिखाता है कि 400 का पार का जो नारा आपका है ना, ये भय से है, ये डर से है। 400 तो क्या, इस बार 100 भी आप पार नहीं होगे, और इंडिया मजबूत है, याद रखिएगा। नीतीश जी का आपको भरोसा है? ईमानदारी से कह दीजिए चैनल पे बैठ के कि हाँ, ईमानदारी से ठोक के कहता हूँ नीतीश जी हमारे साथ रहेंगे। अगर आपको भरोसा है तो कह दीजिए। अरे अभी मैं आपको एक विजुअल देख लीजिएगा, कल से चल रहा है वो विजुअल में देखिए, नीतीश जी एक माला पहनाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी को खींच रहे हैं, और नीतीश जी बोले नहीं माला के अंदर नहीं आऊंगा, मैं माला के बाहर ही रहूंगा। तो अभी से ये स्थिति है, पता नहीं लोकसभा आते आते फिर से वो इंडिया में न आ जाए। जो इंडी कर रहे हैं ना, पता चला वो फिर से इंडिया में आ गए, और आप लोग देखते रह जाएंगे। 80 घंटे का तो मुख्यमंत्री आपने देखा था, और अभी जो है 2-4 10 दिन, 1 महीना 2 महीने का जो है मुख्यमंत्री भी पलटी मार सकता है। तो आप लोग कम से कम अपने घर में झांक के देखिए अवधूत जी, दूसरे के घर में झांकना छोड़ दीजिए। कौन किसे तलवा चाटता है ये पूरे देश ने देखा है। दो पार्टी थी, 2 पार्टी सदस्यों की, अगर वो 400 पे गई है तो ठीक है, 400 के अंदर है वो ठीक है, लेकिन घमंड ठीक नहीं होता है। घमंड तो अच्छों का नहीं चला है, रावण जैसे व्यक्ति का घमंड नहीं चला है, तो आपका और जो है भाजपा का घमंड नहीं टिकने वाला है। ये हमारे देश की जनता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ जनता, ये मुहर मैं नहीं लगा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ जनता गरीब है। आप किस पे चुनाव लड़ रहे हैं? उन 80 करोड़ जनता जो गरीब आप बना के रखे हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, और 50 बार आप जो है मंच से कहते हैं कि मैं अनाज देता हूं। देश की जनता देख रही है कि आज हमको कितना बेशर्मी से हमको जो है नाम लिया जा रहा है कि हम 80 करोड़ जनता जो है अनाज देते हैं। ये पूरा वर्ल्ड देखता है, और वो देखता है कि भारत की ताकत कितनी बड़ी है कि 80 करोड़ भूखमरी के कगार पे लोग बैठे, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उनको अनाज देता हूं। एक तरफ आप राम की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राम को उंगली पकड़ के दिखाते हैं कि राम को अब तो नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे हैं। तो इतने बड़े नरेंद्र मोदी जी नहीं हो गए, राम जी हैं, और हमारे सबके आराध्य हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कितने आएंगे और कितने जाएंगे? कोई राम का टक्कर तो नहीं दे सकता है ना, वो मनुष्य तो नहीं दे सकता है, और देश के प्रधानमंत्री क्या देंगे? ऐसा कोई सगा नहीं अवधूत जी जिसको आप लोगों ने ठगा नहीं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ऐसा कोई नहीं बचा है जिसको आप ठगे नहीं है। ये आज मैं बता दे रहा हूँ, उन सबको चेतावनी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ जो नेता गए छोड़ के, कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, आपको दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हम जिस पार्टी में थे वही सही था, वही हमारा घर था। ये तो नकली घर में आ गए थे। ये नकली घर जो है कहते रहा कि रेती का घर था, और रेती के घर को ढहने में समय नहीं लगता है।
द्विवेदी जी, बिफोर आई कम टू वाग साहब, द्विवेदी जी, आप प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी का गारंटी यानी पूरी होने वाली गारंटी, विकसित भारत का संकल्प, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी, राम मंदिर तो किया, द्वारका में जिस प्रकार से वो सेतु बांध दिया, और जैसे मुंबई में अटल सेतु भी बांध दिया, और बोले कि कहां से शुरू हो गया था, कहां मोदी जी ने खत्म कर दिया, जिसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन मोदी जी, नए भारत का नए कार्य संस्कृति। तो द्विवेदी जी, कहां आप बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं है? रिपोर्ट कार्ड तो बहुत जबरदस्त है द्विवेदी जी। प्रदीप जी बहुत स्पष्ट में बात बताया आपको। ये हमने पहले भी अपने डिबेट में कहा कि आज हमारे देश में युद्ध नहीं होता है। हमारे देश में वोट के माध्यम से, चाहे ईवीएम के मदद डालें, चाहे बैलेट बॉक्स में वोट डालें, वोट के माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में कांग्रेस स्थिति क्या रही? कांग्रेस हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस कितने से हारी, इसके मतलब ये तो नहीं जनता ने उनको वोट नहीं दिया। देखिए, आज जो बात आप कह रहे हैं कि साहब गारंटी वाली बात बता रहे हैं, क्या जब सरकारें बीजेपी के अलावा रही हैं, 10 साल पहले रही हैं, तो क्या आवास अनुसंधान केंद्र या जो जो जो, जो जितनी बेच रहे हैं, जो हमारी जो संस्थाएं लगाई गई थी, जो लगी थी संस्थाएं, उनको माननीय मोदी जी बेच रहे थे, तो क्या माननीय मोदी जी ने उनको लगाया था या भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था? जो संस्थाएं बेची जा रही, चाहे भारत पेट्रोल, तमाम है, रेलवे में रेलवे को अधिकरण किए दे रहे हैं, और तमाम उसको किए दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको क्या मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? ये जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, उनका जिम्मेदारी ये होती है कि आपके पीरियड में आप जनता के लिए कितने काम कर रहे हैं, काम करिए, काम गिनाइए मत, लोगों को धोखा ना दीजिए। आज क्या हो रहा है? काम कम हो रहा है, धोखा ज्यादा दिया जा रहा है। अब अगर मैं महंगाई की बात करूं, आप 2014 से पहले महंगाई के लिए चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? पेट्रोल डीजल के दामों के लेके माननीय जो इनके अब जो सब मंत्री हैं, वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर दौड़ते नहीं थे क्या? है, आज आप बन गए, आप आज आपने पट्टी बांध ली अपने उसमें। तो ये जो ये चीजें चल रही हैं, जो ये चीजें हैं, ये देखने वाली चीजें हैं। तो जनता देखती है, हम नहीं हम डिबेट के माध्यम से नहीं जीत सकते हैं, तो हम 195 में सीटें निकाल जीत नहीं सकते हैं। जनता देखती है, जनता को जब तक आप पर विश्वास रहेगा, तो आप कुछ भी बोलो, ना भी बोलो, आप हमारी 300 सीटें आएंगी, 250 सीटें आएंगी, जब तक जनता आप पे विश्वास कर रही है, तब तक आप चिल्लाते रहिए और घमंड पालते रहिए, घमंड करते रहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश में पहले सपा थी सरकार, फिर अगले चुनाव में बहन मायावती जी की अच्छी खासी सीटें आ गई, बाकी पार्टियां किनारे हो गई। बट द्विवेदी जी एक चीज बता दूं, बीजेपी का जो कहता है उत्तर प्रदेश के बारे में, पहले यहाँ खट्टा बनता था, रामपुरी चाकू बनता था, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं, आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए बन रहे हैं, हर जगह विकास ही विकास है। प्रदीप जी, मैंने वही तो अभी आपसे कहा ना, ब्रह्मोस मिसाइल तो बन रहे हैं ना। अरे सुनिए तो मेरी बात भाई, आप ब्रह्मास्त्र मिसाइल बनाए, तो मिसाइल बन कहाँ रही है? उस फैक्ट्री को लगाया किसने था? लगाया तो कांग्रेस ने था ना, जो सरकार से पहले तो उसने लगाया था ना। तब तो आप ब्रह्मास्त्र बना रहे हो ना, कैसे बनाने लगे आप? हवा में ब्रह्मास्त्र बनने लगा, हवा में ब्रह्मास्त्र बना, सड़क पे खड़े हुए पार्क में, वहां ब्रह्मास्त्र बनने लगा। अरे जो 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 बनाई गई है, जो संरचनाएं की गई हैं, चाहे रेलवे हो, हमारे तो पहले तो कोयले के इंजन चलते थे, पटरी कितनी छोड़ गए थे। आज रेलवे का कितना विस्तार हो गया है, आज हम इलेक्ट्रिक ट्रेन से चल रहे हैं। तो ये विस्तार कैसे हुआ? मैं नहीं कहता हूँ सरकार काम ही ये होता है कि हम जितनी आधुनिक सुविधाएं दें। पहले सड़कें कितनी थी, आज सड़कें कितनी है, आज तमाम पुल बन गए, पहले मुंबई में निकलना मुश्किल होता था, आज तमाम ओवरब्रिज बनाए गए। क्यों बनाए गए? लोगों की सुविधा के लिए। तो जो भी सरकार रहेगी, लेकिन तो आप मान गए कि बीजेपी ने काम किया? देखिए, जनता देखती है, ये समझ लीजिए मेरी बात। अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस हारी भी है, तो इतने ज्यादा वोटों से नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, वोट बैंक है भाई, ज्यादा वोट निकल गया, 100 वोट ज्यादा मिल गए, 100 वोट कम मिले, वो अलग बात है। वाक साहब, लेकिन डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड मोदी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं,
यू नो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग व्हाट भरत सिंह से, रिपोर्ट कार्ड आपका फैसिनेटिंग है, आप बोलते हैं कि 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, आप कहते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन, आप कह रहे हैं आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, आप राम मंदिर बना दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हर घर नल से जल, ये हर घर शौचालय। मगर प्रियंका गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी जी जब जा रहे थे वो कह रहे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका यही मतलब है कि सरकार अपने वादे नहीं निभाए। राहुल गांधी जी का कहना है 88% जो बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटीज है, which constitute 88%। वाघ साहब, this government has not fulfilled its obligations। वाघ साहब, देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि सरकार का काम ही है विकास करना, सरकार का काम ही है डेवलपमेंट करना, सरकार का काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और अच्छे अच्छे काम करना। उसी प्रकार से हम मानते हैं कि विपक्ष का काम ही है आलोचना करना, उनका काम ही है कि जोर जोर से बोम्बा बोम करना और सरकार पक्ष को की आलोचना करके उनको गाली देना। मैं उनके काम के लिए मैं शुभेच्छा देता हूं और आने वाले 100 बरस यही काम आप करते रहिए, यह भी शुभेच्छा देता हूं। अभी आई बात नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन की, तो आप जनधन से शुरुआत करके चांद्रयान तक जाइए, ऐसी कोई भी योजना नहीं है वो किसी क्लास के लिए है। हम खाली 4 क्लास मानते हैं, जैसे एक शेतकरी है जो अन्नदाता है, हम युवा को मानते हैं, महिलाओं को मानते हैं, इस प्रकार से जो गरीब है उनको मानते हैं। ये 4 जो पिलर्स है, यदि 4 पिलर्स को हम लोग यदि मजबूत करेंगे तो हमें लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की कल्पना रखी है उसके तरफ हम लोग जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि जो क्यू है, जो कतार है, वो कतार में सबसे आखिरी जो आदमी खड़ा हुआ है वहां तक विकास की गंगा पहुंचे, और उस दृष्टि से हम लोग प्रयास और प्रचार कर रहे हैं। आज आप देखिए, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहां हम लोग बिजली पहुंचाने में नाकामयाब हुए। हम सब जगह जहां जहां कांग्रेस ने 50, 60, 70 बरस तक बिजली पहुंचाई नहीं थी, वहां बिजली पहुंच गई है। हम लोगों को जल से पानी देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों ने लोगों को गैस सिलेंडर, जो महिला है उनको भेजा, शौचालय का है, स्वच्छता का है, बहुत सारे कार्यक्रम है। यदि मैं बोलते जाऊं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा कम पड़ेगा, लेकिन जो सोया हुआ है उसको हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन जिसने सोने का कुछ एक किया है उसको हम लोग उठा नहीं सकते। मुझे लगता है विरोधियों को सदमा पहुंच गया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 40+3 43 विधायक होते थे, हमारे पास 25 थे। इसके बावजूद भी उधर राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ कल परसों, वहां भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया। अभी जो एमएलए थे जो जीत गए थे 1-1.5 बरस पहले हिमाचल प्रदेश में, उनमें ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि उनका नेतृत्व अच्छा नहीं है, यूजलेस है? क्यों लगा उनको उनका नेतृत्व यूजलेस है? जब उनको लगा उनका केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय नेतृत्व यूजलेस है, नाकामयाब है, तभी उन्होंने सोचा कि इसके लिए अच्छा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से अपने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। हमने क्या किया? यदि कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़कर हमारे पास आना चाहते तो हम क्यों रोके? कांग्रेस ने अपना घर देखना चाहिए। अरे कितने लोग, गुलाम नबी आजाद के बारे में आप क्या बोलोगे? गुलाम नबी आजाद हमारे साथ आए हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोलिए, क्या उनके पास ईडी डाला था? ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, मिलिंद देवरा आ गए। मिलिंद देवरा को क्या ईडी लगाई थी क्या? बाबा सिद्दीकी आ गए, उनके ऊपर क्या ईडी था क्या? कितने लोग, अच्छे लोग जो कांग्रेस में लगातार और बरसों से काम कर रहे थे, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और एक बात कर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मित्रों ने बार बार घर तोड़ने की बात की। भैया, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1999 में कांग्रेस जो टूटी और शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी? सोनिया गांधी किसी भी हालत में प्राइम मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए, विदेशी मूल की नागरिक है वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो शरद पवार आपसे निकल गए, आपके पार्टी के 2 टुकड़े किए, ऐसे शरद पवार ने आपको 1999 में
सत्ता पे आने से रोका, वो शरद पवार के साथ आप गए हैं। शरद पवार को किसने तोड़ा? आपने ही तोड़ा। दूसरी बात है शिवसेना की, जब राज ठाकरे निकल गए, ठाकरे के घराने में वर्टिकल स्प्लिट हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को अलग किया। ऐसा आपको कहना है क्या? अरे आप आपका बोझ खुद नहीं संभाल सकते। आपके कंधे और आपके पांव इतने मजबूत नहीं है कि जो आपके वजन संभाल सके। आप आपके खुद के वजन से टूट रहे हो, आप आपके जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आपका खानदान टूट रहा है क्योंकि घर का मुखिया ठीक नहीं है। घर का मुखिया यदि ठीक रहेगा तो खानदान बिखर नहीं जाता। आपके खानदान का मुखिया अभी ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, उसकी विचारधारा पक्की नहीं है, इसके लिए आपका खानदान बिखर रहा है। उसकी जवाबदारी भी आप लेना सीखो। भारतीय जनता पार्टी को कोसो मत। भरत सिंह जी आप सुने रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का आपने दिखाए। मोदी जी हर मंच पर, अमित शाह जी, मोदी जी, आर्टिकल जितना भी मैंने गिनाए वो एकदम स्पष्ट है, विजन भी है, हर चीज है। मगर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, उनका कहना है कि किसान, महिला, युवा, श्रमिक सब पे अन्याय हो रहा है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, इस सब अन्याय के लिए राहुल गांधी जी का एक जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा है। भरत सिंह जी, ये विकास के सामने क्या ये यात्रा किस प्रकार से, और जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बार बार जिक्र कर रहे अन्याय का, इसमें थोड़ा और भरत से जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जिस प्रकार से कहा वाघ साहब, उसका भी जरा बोलिए। आप बेताबी से हाथ ऊपर कर रहे थे बोलने के लिए। करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। पहले तो आपको कह दूं कि मोदी जी की गारंटी तो इस समय देश पे अपने चरम पे, ये तो मानना पड़ेगा। 15 लाख की गारंटी मोदी जी की थी, नोटबंदी की गारंटी मोदी जी की थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी मोदी जी की थी, देश में महंगाई कम करने की गारंटी जो है मोदी जी की थी। अवधूत जी बैठे हैं, पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, मगर क्या करें, अंतर आत्मा से उन्हें ये पता है कि मैं जो बचाव कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। मेरे अंतर आत्मा जो है वो कहने के लिए मजबूर है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। देश की जनता के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ मैं गलत कर रहा हूं। अवधूत जी का अंतरात्मा चिल्ला के आपके चैनल पे कह रहा है, मगर बेचारे करे क्या, मजबूर है। तानाशाह से मजबूर है कि अगर खिलाफ बोल दिए तो उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने कहा अवधूत जी ने कि 4 जो है वो पिलर है। किसान की बात किया अवधूत जी आपने। आज किसान सड़क पे है, पिछले 10 सालों से सड़कों पे किसान है। पिछले बार जब मोर्चा निकाले थे किसानों ने तो 700 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, और उसका जो है पाप का भागीदार कोई बना था तो देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आपने वापस उन 3 काले कानूनों को फिर से वापस लिया आपने, मगर वो 700 किसान जो शहादत दिए उसके पहले लेते तो मुझे लगता है 700 घरों का आशीर्वाद आपको मिलता था, लेकिन उसका जो है पाप के भागीदार भी आप बने। दूसरा आपने कहा जवान आज जो है उनके लिए आप परेशान हैं, उसी तरह से जवान परेशान है। 4 साल की नौकरी की बात करते हैं, 4 साल की नौकरी आप उनको देंगे और वो 4 साल की नौकरी पाने के बाद में रिटायर जब होके आएंगे तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, मगर आपके नेता, आपके सांसद, आपके मंत्री को पेंशन मिलेगा, लेकिन उन नौजवानों को पेंशन नहीं मिलेगा जो देश की रक्षा करते हैं। तीसरा आपने कहा महिलाओं की बात की आपने। किन महिलाओं की बात कर रहे हैं, किन महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसको ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पैरों के तले रौंद देते हैं, सेंगर जैसे विधायक अपने पैरों के तले रौंद देते हैं। और आपको याद होगा कि हरियाणा के एक मंत्री के ऊपर किस तरह से यौन शोषण का आरोप लगा। क्या किया आपने महिलाओं के लिए, बताइए क्या क्या इन नेताओं के खिलाफ। आज उनके सामने आप बेबस है, अपने घुटने टेक दिए देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव जीतना है, इसलिए वो सबको अभयदान मिला हुआ है। फिर आप कहते हैं चौथा पिलर युवा। आज युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं अवधूत जी। इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में नौकरी नहीं मिल रही है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जो है वो आपने किया था, क्या हुआ उसका बताइए। 2 करोड़ तो क्या 2 लाख नहीं दे पाए। और आज जो है महाराष्ट्र के बारामती में जाके रोजगार योजना का जो है मिलावा आप कर रहे थे।
उस महिलाओं में क्या दिए भाई आपने बताइए? 10,000, 20,000, 40,000 ये नौकरी देने का वादा आपने किया था क्या? आप देश के प्रधानमंत्री की गारंटी, कहाँ गारंटी गई? ये जुमले वाली गारंटी थी, क्योंकि एक गारंटी और आपने दिया था, पता है आपको? नामबियार जी पता होगा, हम लोग बहुत डिस्कशन करते थे कि देखिए कम से कम जो है 450 का सिलेंडर देने पे तो राजी हुई, सिलेंडर देने की तो बात कर दिया आपने 450 का, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। और जब चुनाव जीत गए तो इनकी जो है मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर संसद में कहती हैं ये तो जुमला था, ये तो हमने ऐसे ही कहा था, हम दे नहीं सकते हैं। किस गारंटी की बात करते हैं मोदी जी और अवधूत जी आप लोग? यही गारंटी थी आपकी कि 50 दिन में अगर नोटबंदी का कोई देश खामियाज भुगतेगा तो मुझसे किसी चौराहे पे बुला लेना और फांसी दे देना। क्या हम उनको किसी भी चौराहे पे बुला के फांसी दे? ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से हम बोले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए था, उस काल में कितने लोग जो है बेघर हुए, कितने लोग मौत के घाट उतरे और कितने लोग का जो है शादी ब्याह बहनों का टूट गया। ये गारंटी मोदी जी की थी। और चौथा, मैं लास्ट कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने बोला कि बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान जी की बात की, मिलिंद देवरा जी की बात की। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि बाबा सिद्दीकी के घर पे ईडी की नोटिस पहुंची थी, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। उसके बाद में चौहान साहब को किस तरह से पिछले 1.5 साल से उनको जो है सताया जा रहा था, ईडी के माध्यम से डराया जा रहा था। और उसके बाद अगर उनका जो है कोई तकलीफ नहीं था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, फिर आदर्श घोटाले का नाम वो क्यों लेते हैं संसद के अंदर और क्यों कहते हैं कि आदर्श घोटाला भी इसी महाराष्ट्र में हुआ है? उसके 4 दिन के बाद में अशोक चौहान जी अपना पाला बदलते हैं और जिस व्यक्ति को इस महाराष्ट्र में और इस देश में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री तक बनाया हो और क्या देगा बताइए? मिलिंद देवरा की बात करते हैं आप। मिलिंद देवरा को कांग्रेस पार्टी ने जो देना चाहिए था, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक सब कुछ बनाया। उनके पिताजी आज होते तो मुझे लगता है कि उनके पिताजी आज बहुत दुखी होते और कहते कि मिलिंद देवरा से तूने ये काम किया, ये बहुत गलत किया, क्योंकि जो कुछ दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। तो मिलिंद देवरा जी गए थे तो उनको टिकट, क्योंकि वहां पे हमारे गठबंधन में हमारे साथी को वो सीट जा रही थी और उनको सीट नहीं मिल रही थी, इसलिए गए थे और उनको राज्यसभा भेजे। अरे अवधूत जी, आपके पास तो मेंबर भी नहीं थे, आपके पास तो पार्टी में ओरिजिनल नेता भी नहीं बचे थे। जितने महाराष्ट्र से राज्यसभा गए जरा गिरा दीजिए तो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी, चाहे वो मिलिंद देवरा और 2-3 जो गए जरा बताइए मुझे, चाहे अशोक चौहान गए, कहां से? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपने दिया है। अरे अपने पार्टी, मैं अवधूत जी आपसे कहता हूं, बहुत सालों से आप जो है भाजपा में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मिला आपको बताइए? कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि आपके बाद दूसरा कोई अगर दूसरी पार्टी से आएगा उसको दे दिया जाएगा और आप इसी तरह से टीवी पे बैठ के चिल्लाते रहेंगे। मुझे आपके साथ सहानुभूति है, पूरी सहानुभूति है आपके साथ, मगर क्या करें, आपकी पार्टी जो है ओरिजिनल नहीं बची है, वो पूरे डुप्लीकेट लोगों को लेके पार्टी अपने जो है देश को चला रही है। मैं द्विवेदी जी के पास आता हूं, वाकसाब आई कम बैक टू यू आफ्टर द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, रिसेंटली एक सर्वे हो गया जी न्यूज का, उसमें महाराष्ट्र के 48 सीट्स में से 45 सीट्स उन्होंने ये ट्रिपल इंजन सरकार को दिया है ना। 45 सीट जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन ये सर्वे हुआ है, तो फिर बचा 3 सीट है, वो कैसे होगा एमवीए का? द्विवेदी जी देखिए प्रदीप जी, कोई बात नहीं, जो भी अपना निकाला हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे कि इन्होंने सर्वे निकाला उसमें 45 सीट दे दी। लेकिन आप एक चीज देखिए मेरी बात, जब से सरकार गिरी है कितने चुनाव हुए वहां पे? जो भी चुनाव हुआ है इनका तो वो विधायक हार गया, उसकी वाइफ हार गई, जो 28 साल से शिवसेना के साथ सब चुनाव लड़ रहे थे। भाई 32-35 साल गठबंधन है, वो सीट जीत रहे थे, क्यों सीट हार गया भाई? एकनाथ शिंदे इतने बड़े नेता, बाला साहब के परम भक्त, बाला साहब के पूरा लेने वाले, उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े नेता और बाला साहब के पूरा उन्होंने सब समझ लिया, एकदम से विधायक बने तो सब समझ लिया मंत्री बनने के बाद कि सब शिवसेना में क्या सिद्धांत है, क्या वो है, और वो नहीं जिता पा रहे हैं भाई। ये जितने चुनाव हुए वो महाविकास अघाड़ी जीत गई। तो ये कहने से कुछ नहीं होता है कि हम विधायक तोड़ के हम आज बन रहे हैं राजा साहब, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महान नेता, ज्ञानी पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी भैया भाजपा में है, ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं डिबेट में। हम तो 6-7 साल से कर रहे हैं डिबेट, मगर ज्ञान सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। कभी महारानी बोलेंगे, अरे भाई राज्यसभा सदस्य हैं, एक प्रधानमंत्री की विधवा है, अरे सम्मान करना सीख लो। क्यों घमंड है, समझते हैं हम राजा हैं, सम्मान करना सीख लो भाई। आप महारानी कह रहे हो कि वो राज्यसभा चली गई, तो अरे भैया उनका मन
चुनाव लड़े यार, राज्यसभा जाए। हुआरियो कौन है भाई तुम? किसने तुमको भेजा भाई? हम चुनाव लड़े यहाँ, चाहे हम राज्यसभा जाए, आपसे क्या मतलब है? आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी जी, मानी राहुल गांधी जी के लिए आप उल्टे शब्द इस्तेमाल करते हैं। अरे संस्कृत भारतीय परंपराएं हैं, संस्कृति भारत। तो वी कम टू द लास्ट राउंड ऑफ द प्रोग्राम। अवधूत जी, जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, भरत सिंह जी, आप ही का बात करता हूं। 30 अवधूत जी स्टैटिस्टिक्स में मास्टर है, वाघ साहब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। अवधूत साहब, उनका कैलकुलेशन है 38% बीजेपी मोदी वोट्स, 62% एंटी बीजेपी एंटी मोदी वोट्स। तो इसमें आप 400 पार कैसे करोगे? एक जो प्रश्न था बार बार आ रहा है, अवधूत वाघ साहब, और कितने सच्चाई में कितने होगा? अरे भैया, ऐसा था कि जब कांग्रेस जीतती थी तो कांग्रेस को भी 35% वोट मिलते थे और बाकी विरोधियों को 65% वोट मिलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे, कांग्रेस जीतती थी। जब कांग्रेस 35% वोट लेके सत्ता पे आती थी तब ये इक्वेशन नहीं बताया जाता था। एनीहाउ, छोड़ दीजिए, मुझे क्या कहना है, इनको जो जो बकबक करनी है करने दो। जितना जितना मुंह से धुआं निकलना है निकलने दो। आने वाला तो मोदी ही है। अब की बार 400 पार ये हमारी नहीं, वो मोदी की गारंटी है। आप वापिस टीवी चैनल में आते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए। आप खुद खुश हो जाइए, आपके सब परिवार के लोग खुश होते जाएंगे। आप सभी वापिस टेलीविजन में देखने के बाद जो 4-5 लोग बचे कुचे होते रहेंगे, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सभी लोग उत्सुक है। पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड whom to vote. People are waiting for the voting date. They want to vote for Lotus. They want to vote for NDA. They want to vote for Modi. They want to vote for development. They want to vote for Vikas, and they want to throw you out. पश्चिम बंगाल में 200 पार, थैंक यू वेरी मच। अवधूत वाघ साहब ने बोल दिया 400 पार। भरत सिंह जी आंकड़ा कैसे? भरत सिंह जी, वाघ साहब ने कहा कि आंकड़े इंदिरा गांधी जब दिखते थे आंकड़ा 35% वोट, तो आप बोलते थे नहीं बोलते थे। अभी मोदी जी क्यों बोलते 62% वोट अगेंस्ट है? भरत सिंह जी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। पहले तो आपको सर्वे, आपने कहा जो सर्वे कि 45 सीट दे रहे, तो इनके घर का सर्वे था वो। अब घर का माल है, आप उसको 40 कर दो, 45 कर दो, 48, ये तो अच्छा वो 48 नहीं किया नाम्बियार की। एक सर्वे, 2-3 सर्वे आया, 2-3 सर्वे में 2 सर्वे ये बताया कि 26 सीट जो है वो हमारे गठबंधन को मिल रहा है, महागठबंधन को, और 22 सीट करीब आ रहा है ये उद्धव और इनको। तो मैं भी, हमारी जो सर्वे है ना, उस सर्वे में अब मैं आपको बता रहा हूँ करीब 42 सीट हमको आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कहां से आया? अरे भाई, जो भाजपा ने सर्वे किया था उसी तरह से हमने भी सर्वे किया है। तो सर्वे छोड़ दीजिए, अगर इनको अपने पे बहुत भरोसा होता, अपने ऊपर इनको इतनी जो है घमंड है, तो भाई बीएमसी के चुनाव को पिछले 2-3 सालों से लटका के क्यों रखा आपने? करवा लेते चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मगर इनको डर है, डर ये है कि चुनाव करवा दिए तो ये जो महाविकास आघाड़ी की जो है जितने भी पार्टी में नेता हैं, वो सारे नेता लेके ऐसी बैटिंग करेंगे कि सेनवान को एक बार बहुत याद आ रहे थे, जो है सचिन तेंदुलकर, उसको रात को नींद नहीं आई थी सेनवान को। उसी तरह से ये जो भाजपा के सेनवान नरेंद्र मोदी जी है ना, और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी, इनको बता रहा हूँ नींद नहीं आएगी। इतनी धुलाई करेंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर हिम्मत है तो बीएमसी का चुनाव करा के दिखा देते। अब तो चुनाव आ गया लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में आज मैं आपको बता दूं नाम बिहार, हम 30+ सीट जा रहे हैं। आप आपके सोसाइटी के पहले चेयरमैन बना के देखिए, आप आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी बनिए, कॉर्पोरेशन छोड़ दो। भाई मैं तो कह रहा हूँ 30+ आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी बनिए पहले हाउसिंग और सोसाइटी। ये जो मैं आपको गणित बता दूं, पूरे देश में जो ये 400 पार की गणित बता रहे हैं ना, वो 400 पार की गणित ये बता रहे हैं, इनको अच्छी तरह से पता है पूरे देश में 400 पार नहीं हो रहे हैं। मगर क्या करें, अवधूत जी के जो है अंतरात्मा को जगाना है, निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके वी कम टू द फाइनल। द्विवेदी जी लास्ट कमेंट आप बोलिए। द्विवेदी जी 45 तो चले गए आपके, 45 बोल रहे हैं, कैसे करेगा उद्धव ठाकरे जी सेना? प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी जो चुनाव से पहले हुए हैं, हाँ ये चुनाव अभी करा लें चुनाव ना, अब विधानसभा चुनाव करा लें, छोड़िए विधानसभा चुनाव करा लें। अगर इनको इतना ही था तो चुनाव करा लेते ना। ये देखिए, ये कांग्रेस की बड़ी बुराई करते हैं,
सब 356 धारा लेके गिरा देते सरकार, वो अच्छा काम था, संवैधानिक काम था। लेकिन आप चोर उचक्का कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, माफियागिरी कर रहे हो, विधायक खरीद ले रहे हो, घर में तोड़फोड़ कर दे रहे हो, और आप कह रहे हो नहीं साहब मैं तो बिल्कुल सही हूँ। अरे संवैधानिक काम करो भैया। अब भरत सिंह जी ने गिनाया कि इतने सीट्स हमको मिल रहे हैं। हाँ, संवैधानिक काम करो तो सीट आप देख लीजिएगा, 5 से 6 सीटें ज्यादा नहीं मिलेंगी इनको, भारतीय जनता पार्टी का। बस थैंक यू भरत सिंह जी, थैंक यू सो मच। Dwivedi ji, thank you so much. Wonderful discussion. So kind of you. People enjoyed this. The viewers enjoyed this. Thank you so much for being a part of the show. That was a fantastic discussion. And as always we discuss, whoever rules us, whoever wins the election, should see that the Constitution and the pillars of the Constitution are protected. As we always end with the preamble to the Constitution, to remind our viewers how important it is. Because if the Constitution survives, we always survive. We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. Right to life, liberty, and pursuit of happiness. And fraternity is believing the eternal universal brotherhood and believing the territorial and political integrity of the nation. We'll come again for more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. For now, it's time to take the departure. It's bye for now. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. See you again tomorrow at the same time.